بات آج مجھے شیطان کی کرنی ہے. شیطان سے تو ڈر کے رہنا چاہیے سبھی کو، خاص طور پہ فزسسٹ کو. ڈیمنز اینڈ ڈیولز ان فزکس. دیکھیں، ڈیول تو ہو گیا شیطان، ڈیمن کیا ہوا؟ شیطان نما چیز ہے، لیکن وہ ایک شیطان کا کارندہ ہوتا ہے. تو سمجھ لیں کہ جیسا کہ گلو بٹ ہے، تو خود شیطان نہیں ہے لیکن اس کا کام کرتا. تو آج میں شروع کروں گا اپنی بات میکسویلز ڈیمن سے. لیکن میکسویلز ڈیمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے آپ کو کافی سارا بیک گراؤنڈ دینا ہوگا ہیٹ فزکس کا، جس کو تھرمو ڈائنامکس کہتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں، یہ آپ کے مشاہدے میں ہے کہ گرمی کسی گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف جاتی ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کی بالٹی جو گرم تھی وہ ٹھنڈی ہی ہوتی جاتی ہے. ٹھنڈا پانی خود بخود گرم نہیں ہوتا. ہمیشہ ایسے آپ نے دیکھا کہ جو گرم چیز ہے وہ کسی ٹھنڈی چیز کو اپنی گرمی دیتی ہے. تو یہ ہمیں نہیں پتا تھا آج سے کوئی 200 سال پہلے کہ گرمی کی نوعیت کیا ہے. یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک مایا نما چیز ہے، ایک فلوئڈ ہے، اور وہ فلوئڈ جو ہے وہ ایک گرم جسم میں زیادہ ہوتا ہے اور ٹھنڈے جسم میں کم. لہٰذا جس طرح پانی زیادہ سے کم اونچائی سے جاتا ہے، ویسے گرمی بھی اسی طرح سے بہتی ہے، ایک فلو ہوتا ہے ہیٹ کا. مگر ہمیں اس وقت یہ پتا تھا کہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا فرینچ، کلاؤزیس. کلاؤزیس نے کہا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اس نے انٹروپی کا نام دیا، اور انٹروپی ایک ایسی مقدار ہے جس کو اس نے ایک میتھمیٹیکل شکل دی. اس نے کہا انٹروپی کو نام اس نے ایس دیا. تو اگر تھوڑی سی گرمی، جس کو میں ڈیلٹا کیو کہوں گا، اگر یہ ادھر سے ادھر جائے تو اس انٹروپی کی مقدار پھر اتنی بنتی ہے. تو یہ کلاؤسیس کے زمانے کی بات ہے، اور یہ کوئی 200 سال پہلے سمجھ لیجیے. نہیں پتا تھا کہ یہ فزیکلی کیا چیز ہے، مگر یہ ایک ایسی چیز ہے جو بقول کلاؤزیس کے ہمیشہ بڑھتی ہے، کبھی گھٹتی نہیں ہے، اگر آپ کا پورا سسٹم آزاد ہو، باقی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. اچھا، تو مثال کے طور پر جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی، ایک کمرہ ہے، بند کمرہ ہے. ہم ان دیواروں سے نہ گرمی کو آنے دیتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں. پانی کی بالٹی پڑی ہے، اس میں پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کمرہ قدرے گرم ہو جاتا ہے. اور کلاؤسیس کا یہ کہنا تھا کہ انٹروپی ایک ایسی مقدار ہے جو بڑھے گی. دوسری مثال، آپ برف لیجئے، تو برف پگھلتی ہے، وہ گرم ہو جاتی ہے، اور باقی جو اس کا ماحول ہے جس کے اندر نہ باہر سے کوئی گرمی آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے، گویا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس پورے نظام کا اس کی انٹروپی بڑھے گی. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کا ہماری دنیا سے کیا تعلق ہے اور کیوں یہ اہم چیز ہے؟ وجہ یہ کہ آج سے 200 سال
250 साल पहले जब का इंजन बना, भाप का इंजन बना, उसके बाद पेट्रोल का इंजन बना, डीजल का, ये तमाम इंजन जो है गर्मी पर चलते हैं। दे आर थर्मोडायनामिक इंजन्स। आज जितनी भी बिजली पैदा होती है दुनिया में, या जो भी इंजन चलते हैं, या आपकी जो गाड़ी है, या जो हर जो चलने वाली चीज़ है, वो थर्मोडायनामिक्स के उसूल पर चलती है। गोया कि थर्मोडायनामिक्स बहुत ही बुनियादी किस्म की साइंस है और इसको परखा गया है और कभी इसमें कोई खलल नहीं पाया गया। ओके, अब 50 साल आगे चलता हूँ। तो उस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हमें ये पता चला कि हवा के अंदर दरअसल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। जो हवा का दबाव होता है किसी बर्तन के ऊपर, या फ़र्ज़ कीजिए कि इस कमरे की दीवारों के ऊपर, वो इसलिए कि हवा के जो एटम हैं वो जाकर इसके साथ टकराते हैं और फिर टकरा कर वापस आते हैं। तो ये मुसलसल उनके टकराने से इन दीवारों के ऊपर दबाव पड़ता है। और ये भी हमें पता चला कि ये जो एटम है वो अपने आप को फैलाना चाहते हैं पूरे इस बर्तन, इस माहौल के अंदर, इस हुजूम के अंदर। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं बहुत से एटम जमा करूं, मसलन किसी गुब्बारे में, गुब्बारे को सुई से चुभाऊं तो गुब्बारा फटेगा और वो जो बाकी जो एक्स्ट्रा एटम वो सारे आसपास फैल जाएंगे और हर सूरत में एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा, अब इस चीज को तकरीबन 50 साल के बाद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने समझा। मैक्सवेल बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत ही एक ज़बरदस्त जहन का मालिक था और उसने एक तो थर्मोडायनेमिक्स को क्लाउजियस से लेकर उसके अंदर जो जिद्दत पैदा की और जो उसको समझा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो एक चीज़ है। जो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी नौइयत तक, उसकी पेशन गोई सबसे पहले मैक्सवेल ने की थी। अच्छा, मैक्सवेल ने कहा क्या, ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस गैस के अंदर एटम्स हैं और ये एटम्स हरकत करते हैं, कुछ बहुत तेज़ी से करते हैं, कुछ कदरे कम, वो हर तरफ हर समत में हरकत करते हैं। अच्छा, फिर उसने सोचा कि देखो, कुदरती तौर पर तो इस निज़ाम में बराबरी फितरी चीज़ है। तो ये गैस का अगर मैं बहुत सारे एटम्स इधर जमा करूं, कुछ वक्त के बाद ये बराबर होकर सारे फैल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस कमरे में जितने एटम्स हैं उन सबको इकट्ठे करके मैं उस कोने में डाल दूं, तो बस समझ लीजिए कि एक सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर ये पूरे कमरे में फिर से बराबर फैल जाएंगे। उसने फिर उसके जहन में ख्याल आया कि अगर फर्ज कीजिए मैं हर एटम को देख सकता और उसको मैं ट्रैक कर सकता कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो क्या मैं फिर उस गैस की ख़ास को बदल सकता हूँ? और फिर उसने एक ऐसी ख्याली चीज़ का सोचा जो उसके नाम से अब मंसूब है, मैक्सवेल्स डीमन। फर्ज कीजिए कि तो ये डीमन है, देखें ना, हमेशा ये ख़तरनाक शक्ल के होते हैं और इनका काम, डीमन्स का काम हमेशा ये कि काम ख़राब करना है। तो जो फितरी निज़ाम है, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है,
اور جس کا یہ کہنا ہے کہ انٹروپی کو ہمیشہ ہمیشہ بڑھنا چاہیے، میکسویل نے ایک ایسی چیز تصور کی جس سے یہ قانون الٹا ہو جاتا ہے اور خود بخود یہ انٹروپی گھٹتی ہے۔ تو اب میں نظام اس کا سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک گیس ہے اور سمجھ لیجئے کہ تقریباً اتنے ہی ریڈ ایٹمز ہیں جتنے کہ بلو ایٹمز ہیں یہاں پہ۔ اچھا، اب یہ شیطان ہے، یہ ڈیمن ہے، اور یہ ڈیمن ہر ایک ایٹم کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ بلو ایٹم اس دیوار کی طرف آ رہی ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ ایک بہت ہی پتلی سی دیوار ہے ادھر، تو جب یہ بلو ایٹم اس کی طرف اس جگہ پر آتا ہے تو وہ دیوار کو نیچے کر لیتا، پارٹیشن کو نیچے کر لیتا، اور یہ بلو ایٹم پھر اس سے ٹکرا کر واپس چلا جاتا۔ لیکن جب ڈیمن یہ دیکھتا ہے کہ ایک سرخ ایٹم اس کی طرف آ رہا ہے تو یہ پارٹیشن اوپر کر دیتا، اور جو سرخ ایٹم ہے وہ ادھر چلا جاتا۔ پھر اس نے دیوار پارٹیشن بند کر دی، پھر انتظار کیا۔ انتظار سے مطلب یہ ہے کچھ مائکرو سیکنڈز انتظار کیا، اس کے بعد پھر سے یہ چیز ہوئی، کوئی چلیے یہ بلو ایٹم ادھر آ گیا، کیونکہ ایٹمز تو آپس میں ہر وقت ٹکراتے ہیں، ادھر سے ادھر ٹکرا کر ادھر جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بلو ایٹم اس کی طرف آتا دیوار بند کر دیتا، اور جب بھی کوئی ریڈ ایٹم آتا تو دیوار کھول دیتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا بتائیے، کیا ہوگا؟ ریڈ ایٹم ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اس طرف۔ ایگزیکٹلی، تو سارے ریڈ ایٹمز اس طرف ہو جائیں گے، سارے بلو ایٹمز اس طرف ہو جائیں گے۔ اچھا، تو فرض کیجئے کہ بلو ایٹمز ہیں ہی نہیں، صرف ریڈ ایٹمز ہیں، تو پھر سارے ریڈ ایٹمز اس طرف ہو جائیں گے، یا پھر اگر وہ چاہے تو سارے ایٹمز اس طرف ہو جائیں۔ گویا کہ جب آپ نے ان دونوں کو مکس کیا تو ان میں پھر آپ نے فرق پیدا کیا، زیادہ سے زیادہ اس طرف ہو، سارے اس طرف ہو گئے ریڈ، سارے اس طرف ہو گئے بلو، اور اگر بلو نہیں ہے تو آپ نے ایک مکسچر سے آپ نے یہ ان دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ گویا کہ انٹروپی اب خود بخود گھٹ گئی۔ میکسویل نے انٹروپی کو بے ترتیبی کے ساتھ جوڑا۔ اس نے کہا کہ ایک نظام میں جتنی زیادہ بے ترتیبی ہوگی، انتشار ہوگا، اسی حساب سے انٹروپی زیادہ ہوگی۔ تو کلاؤسیس نے جو یہ فارمولے کے ذریعے سے انٹروپی کو ڈیفائن کیا تھا، میکسویل نے اس کو ایک فزیکل انٹرپریٹیشن دی۔ اس نے کہا کہ انٹروپی اس کا پیمانہ ہے کہ کسی نظام کے اندر بے ترتیبی یا انتشار کتنا زیادہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو نظام ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تھرمو ڈائنامکس کے لاز کو بالکل الٹا دیتا ہے۔ تو اب فرض کیجئے کہ یہ سارے ایک ہی رنگ کے ہیں، اب یہ ہمیں پتہ ہے، ویسے دو الگ رنگ کے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن چلیے اٹس سمپلر ٹو تھنک آف ون کلر۔ جب آپ کسی گیس کو گرم کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اینی ون جو ہاں، لیکن اس کی سپیڈ کے حوالے سے، ہاں، گرمی دیکھیں، گرمی کیا چیز ہوتی ہے؟
جب ہم مثال کے طور پر اپنے ہاتھ کو یوں رگڑتے ہیں ایسے خوب دیر تک آپ کریں تو آپ کے ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں نا. کیوں گرم ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں جو ایٹمز ہیں وہ پھر زیادہ تیزی سے ایسے ہلنے لگتے ہیں اور اس سے پھر ہمیں گرمی کی سینسیشن ملتی ہے, گرمی محسوس ہوتی ہے. گیس کو جب آپ گرم کرتے ہیں تو گیس کے اندر جو ایٹمز ہیں پہلے اگر وہ اس سپیڈ پہ چل رہے تھے اب وہ یوں چلنے لگیں گے. اچھا, تو فرض کیجئے کہ یہاں جو ہمارا ڈیمن ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک ایٹم کیا وہ آہستہ چل رہا ہے یا تیز چل رہا ہے. اب وہ یوں کرے گا کہ اگر یہ آہستہ چلنے والا آیا اس دیوار کی طرف, اس پارٹیشن کی طرف, تو وہ دروازہ بند کر دے گا. لیکن اگر یہ تیز چل رہا ہے تو یہ کھول دے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ ادھر سارے سلو ایٹمز رہ جائیں گے, ادھر فاسٹ ایٹمز ہوں گے. تو فاسٹ ایٹمز, تیز حرکت کرنے والے ایٹمز, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرمی. گویا کہ گرمی ٹھنڈے سے گرم حصے تک گئی ہے. اب دیکھیں, this is devastating. اس سے تو فزکس کے قانون کا تہس نہس ہو جاتا, تباہ ہو جاتا. آپ جب پیٹرول جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اپنی گاڑی میں, جب سپارک لگتا ہے تو گیس گرم ہوتی ہے, ایندھن کے جلنے سے پسٹن باہر کی طرف اس کو دھکا ملتا ہے اور پھر جو گرم گیس ہے وہ پھر نکال دی جاتی ہے. اب اس کا میں چھوٹا سا ڈائیگرام بنا دیتا ہوں آپ کو. تو یہ گرم ہے, ہاٹ, یہ کولڈ ہے. گرمی گرم سے ٹھنڈے کی طرف جاتی ہے. یہاں بیچ میں آپ کا پسٹن اور دوسرا سب کچھ ہے. ادھر سے نکلتا ہے کام, وہ کام جو پھر آپ کے پہیے کو گھماتا ہے اور گاڑی آگے چلتی ہے. اچھا, اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے سلنڈر کے اندر گرمی ہے وہ ٹھنڈے کا رخ کرے. دا ہاٹ ایٹمز مسٹ گو, یہ جو گرم حصہ ہے جسے ہم ہاٹ ریزروار کہیں گے, یہاں سے انرجی کو جانا ہے ٹھنڈے کی طرف. اور ٹھیک ہے, کچھ تو ضائع ہو گیا کہ دیکھیں نا, جب آپ پیٹرول جلاتے ہیں اپنی گاڑی میں تو اس کا ایک حصہ تو آپ کی گاڑی کو آگے بڑھاتا ہے, وہ یوزفل کام کرتا ہے. ایک حصہ اس کا مگر ضائع ہو جاتا ہے, اور وہ ضائع اس طرح سے کہ جو پیچھے آپ کا سیلنسر لگا ہوا ہے, جو کیا کہتے ہیں اس کو, ایگزاسٹ ہے, ہاں, ایگزاسٹ میں سے کچھ گرمی نکل جاتی ہے, وہ ضائع ہونے والی گرمی ہے. تو جتنی انرجی آپ نے پیٹرول میں ڈالی اس کا ایک حصہ گاڑی کو چلانے میں لگ گیا, ایک حصہ ضائع ہو گیا. ایفیشنسی جو ٹپکلی ہماری گاڑیوں کے انجن کی ہوتی ہے, دیٹ از اراؤنڈ 30%, 40%, اس سے زیادہ نہیں. 70% تو ضائع ہو جاتی ہے. افسوس, لیکن کیا کر سکتے ہیں, یہ تھرمو ڈائنامکس کا اصول ہے, اس سے آپ انحراف نہیں کر سکتے. اینی وے, تو کیا یہاں سے میں واضح کیا کہ گرمی جب
यहाँ गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म पर जाती है, तब ही आपको इसमें से काम मिल सकता। अब यहां पर देखें, मैक्सवेल डीमन के होते हुए तो ये शैतान देख रहा है कि स्लो मॉलिक्यूल जा रहा है, दरवाजा बंद कर दिया, तेज मॉलिक्यूल आया, दरवाजा खोल दिया, तेज मॉलिक्यूल उधर चला गया, ये गर्म हिस्सा हो गया, ये ठंडा हिस्सा हो गया। अब ये मेरा हॉट रेजर्वॉयर हुआ, ये मेरा कोल्ड रेजर्वॉयर है। अब इनके बीच में मैं इंजन चलाऊंगा, यानी कि मुफ्त की मुझे एनर्जी मिली, मैंने तो पेट्रोल भी नहीं खरीदा और खुद ब खुद ये गाड़ी चलने लगी। तो इस शैतान ने तो तबाही फेर दी थर्मोडायनामिक्स की। अगर ये वाकई है तो फिर अगर ऐसा डीमन वजूद रखता, अगर हम ऐसा डीमन बना सकते, फिर हमें कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, कोई डीजल नहीं चाहिए, कोई गैस नहीं चाहिए, कोई ईंधन नहीं चाहिए। By violating the second law of thermodynamics, we can get free energy, मुफ्त 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 मुफ्त। पानी की गाड़ी याद आती है? तो that is if you can make this demon. मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये हकीकी डीमन हो सकता है? कैन यू एक्चुअली मेक अ डीमन लाइक दिस? Why do you think so? Sir, my answer is no to this because it violates the second law of thermodynamics, and the heat cannot flow from cannot flow from a cold body to a hot body. हाँ, तो आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज हाउ द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी वायलेटेड, कि मैं जाकर देखूं एटम बाय एटम, ओहो वो इट्स मूविंग स्लो, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट, रोक बीच में दीवार डाल दी। I know. As the Heisenberg's principle states that you cannot know the precise location of an atom and its motion. अच्छा, that is a very nice reason you are giving. अच्छा, चलिए, Thank you. You see, this was long before Heisenberg. Heisenberg was 1920. मैं जो बात कर रहा हूँ वो 150 साल पहले की है. So it's समझ लो कि 50 years before that. So can anyone give me a reason why this is not workable? Anyone? अच्छा, क्या एतराज़ हो सकता है? एक तो ये कि चलिए इतना नन्हा सा डीमन बनाना, मगर चलिए शैतान जो है ना वो हर किस्म के काम कर सकता है, तो उसने अपना गुल्लू बट बनाया है, तो वो ये काम कर सकता है ना, फर्जी बात है। हाँ Sir, if we are even were able to make this, we would need energy to power it. That might work, but I'll tell you why it might not work. What you're saying is कि इसको उठाने में एनर्जी चाहिए होती है ना। आपने ठीक है बहुत ही हल्का पार्टीशन बनाया, मगर ये डीमन जब उसको ऊपर उठाता है तो उसको कुछ एनर्जी उसके ऊपर सर्व करनी पड़ती है। माय ऑब्जेक्शन टू योर ऑब्जेक्शन इज कि जब उसने ऊपर उठा दिया तो उसने फिर वापस भी रख दिया। जब वापस रखा तो जितनी एनर्जी उसने उठाने में लगाई उतनी ही उसने वापस डाल दी। और फर्ज करो कि ये एक
फ्रिक्शन लेस सिस्टम है जिसमें कोई लॉसेस नहीं होते, उस सूरत में आपका जो एतराज है वो नहीं चलेगा. हाँ, मान लिया कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ इसमें नहीं जो होता एप्लीकेबल, लेकिन सर इससे बाकी लॉज भी सारे डिसएग्री हो जाएंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगा, उससे बाकी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बाकी लॉज हैं वो भी हमें डिनाई करने पड़ेंगे. तो सर ये तो फिज़िक्स सारी ख़त्म हो जाएगी. ना 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 वाई आप क्यों कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें ज़ाया ख़राब हो जाएगी? देखें, ये एटम जब इस दीवार से टकराएगा, टकरा कर वो पलट जाएगा. उसने कोई अपनी एनर्जी इसमें ज़ाया नहीं की. जो चला गया तो खैर चला गया, लेकिन जो इसके साथ टकराता भी है डजंट लूज एनी. और फिर जैसा कि अभी बात हुई कि उस दीवार को, उस पार्टीशन को ऊपर उठाने में आपको एनर्जी सर्व करनी पड़ी. जब ये वापस नीचे आया तब आपको एनर्जी वापस मिल गई. गोया कि इसमें वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आता. मैक्सवेल वाज स्मार्ट इनफ फॉर दैट. देखिए, मैं जो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ ये बहुत गहरा सवाल है. इस मसले का हल बस अभी निकला है, 1962 में निकला. अभी मैं बताने वाला हूँ कि वो क्या है. सर मुझे लगता है कि अगर एक साइड पे सारा हॉट एटम चले जाएंगे, एक साइड पे कोल्ड रह जाएगा, तो वो एक्सप्लॉइट भी कर सकता है. क्योंकि अगर देखा जाए सन है सर, तो वो उधर से गैसेस निकल रही हैं, जिस तरह सर आग जल जाती है, तो मे भी वो एक्सप्लॉइट कर जाए. एक्सप्लॉइट से मुराद क्या? सर वो उनकी स्पीड और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वो एक टाइम आएगा तो वो एक्सप्लॉइट कर जाएगा. एक्सप्लोड एक्सप्लोड फट जाएगा. जी सर. नहीं, हम देखें, इसकी दीवारें इतनी मजबूत बना सकते हैं कि कोई ऐसा खर्चा नहीं होगा. हमें थोड़ी सी भी मुफ्त की एनर्जी मिल जाए ना, बहुत है. क्योंकि इस पर अगर हमने कोई इंजन बनाया तो उसका मतलब फिर ये बना कि आपको मुफ्त की एनर्जी मिलती चली जाएगी. जहां आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उधर तो फिर आपको मुफ्त की एनर्जी मिलती चली जाएगी. मुफ्त मीनिंग यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट, यू डोंट हैव टू स्पेंड any fuel on it. Sir, if we have to make this demon, it will have to be very quick to respond to the changes. Like if an atom they move really fast, it will have to go super fast. But there's also one problem, and a slow moving atom can also pass with the fast moving atom. Acha, okay. You know, you have a scientist. Very good, very good. Thank you, You have sir. a scientist way of thinking about this. हाँ, उधर दीजिए. हाँ, लेकिन उससे पहले मैं जवाब ये दे दूँ. अच्छा, क्लैरिटी एक सेकंड मैं. हाँ, ये तुम्हारा कहना है कि अगर दो एटम साथ साथ आ रहे हों तो डीमन जो है वो इतनी जल्दी एक्ट नहीं कर सकेगा कि वो दोनों घुस जाएंगे. हाँ, पॉसिबल, बट वेरी वेरी रेयर. और अगर गैस ज़्यादा डेंस ना हो तो ये कभी कभार ही होगा. लिहाजा ये एतराज़ नहीं हो सकता. वी कैन मेक द गैस sufficiently low density so that this very rarely happens. अच्छा, जो दूसरा है कि the demon has to act very 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 fast. Yeah, so what? It's a microscopic demon. वो तुम्हारी तरह नहीं है. It can be a very very small thing. It has to be intelligent. It has to be able to tell. मैं बताता हूँ कि now we are actually making Maxwell demons in the lab. हाँ जी, बताइए. सर एक ऑब्जर्वेशन जो मेरी थॉट इसमें आ रही है कि इसको वर्केबल करने के लिए वी हैव टू हीट द लेफ्ट हैंड साइड. मतलब उसको हमें एक्सेलरेट कराने के लिए कहीं ना कहीं से तो पुश करना पड़ेगा, अदरवाइज तो एनर्जी तो कहीं से चाहिए, अदरवाइज से रिजल्ट कंसिडरेबल तो शायद ना मिले. नहीं, देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि
ये गैस है, ठीक, इधर इस गैस में, ये गैस रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पे है, लिहाजा इसके जो इस कंटेनर की जो दीवारें हैं वो भी रूम टेम्परेचर पर हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है एटम्स की और यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है एटम्स की वो बराबर है। फिर मैं इधर इस शैतान को बिठाता हूँ और वो तेज मॉलिक्यूल्स को यहाँ जाने देगा, आहिस्ता को रोकेगा, लिहाजा इधर तेज जमा हो जाएंगे, इधर आहिस्ता जमा हो जाएंगे, ये ठंडा हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में एनर्जी तो पहले से थी, वो तो हाँ, बस ये कि अब मैंने ये गर्म इस तरफ कर दिए, ठंडे इस तरफ कर दिए, और ये खुद ब खुद हुआ। खुद ब खुद मतलब ये कि इसको कोई मज़ीद गर्मी या ईंधन देने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी पजलिंग। अच्छा, चलिए अब हम आगे चलते हैं, और ये है 1960s की बात। जिसने इस मसले को हल किया, जब मैं कहता हूं कि हल किया तो इसका मुकम्मल हल अब तक नहीं निकला। मैं बताता हूं कि इसमें क्या पेचीदगियां हैं। उस शख्स का नाम है लैंडावर, और ये 1962 की बात है। तो लैंडावर ने कहा कि देखो, एक एटम अगर कोई एटम तेज चल रहा है या आहिस्ता चल रहा है, तो डीमन को वो बात रिकॉर्ड करनी होगी कहीं पे। कहां पर रिकॉर्ड करेगा? किसी कंप्यूटर पे करेगा। कंप्यूटर पे आप डेटा किस सूरत में डालते हैं? बिट्स की सूरत में। तो जो आपका आम कंप्यूटर है उसमें कुछ गीगाबिट्स होते हैं। बाइट और बिट में फ़र्क तो आपको पता है। उसमें 10 गीगाबाइट्स होते हैं। बहरहाल बाइट्स होते हैं, बिट्स होते हैं। एक बिट जो है वो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब इसका मतलब ये कि आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन कि कौन सा एटम, एक तो ये कि किस रंग का है, अगर रंग सारे एक ही हों, एक ही किस्म के हों, तो हर एटम के पोजीशन और उसकी स्पीड को आपको कहीं पर नोट करना है। यानी कि यू हैव टू हैव अ डेटा रिपोजिटरी फॉर दैट। कंप्यूटर में आपको रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब ये मैं, अगर आप चाहें तो मैं डिस्कस कर सकता हूं बाद में, लेकिन ये एक हकीकत है कि जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है इसके अंदर, सो फाइनाइट है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर इस वक्त मुझे पता है कि ये सारे एटम्स कहाँ पर हैं, किस तेज़ी से मूव कर रहे हैं, तो अगले लम्हे में वो भी मेरे पास शायद इतना बड़ा कंप्यूटर हो कि मैं नोट कर सकूं। लेकिन उसके बाद जो लम्हात आएंगे उसमें वो डेटा की मिक़दार इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूरी कायनात को अगर आप कंप्यूटर में तब्दील कर दें ना, जितना भी मादा है उसमें, उससे आप मेमोरी बना लें, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं होगा। लिहाजा कुछ वक्त के बाद आपको इंफॉर्मेशन डिलीट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब लैंडावर ने यह साबित किया कि जब भी आप एक बिट को डिलीट करते हैं तो आपको फिर उसकी कीमत देनी पड़ती है।
you have to pay in terms of energy. And the minimum amount of energy वो उसने calculate किया, it is ज़रूरी नहीं, I won't write down the formula, it is KT log 2. अच्छा देखिए ना, आप जब डिलीट बटन प्रेस करते हैं अपने ये जो भी स्मार्टफोन वगैरह लैपटॉप वगैरह है, आप समझते हैं कि ये मुफ्त में हो गया? नहीं हुआ, उसके लिए बिजली खर्च करनी पड़ी। अच्छा, तो अब बात समझ में आ रही है कुछ कुछ कि ये इस शैतान के भी कुछ इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो ये है कि he has to know about every atom's position and speed, वरना वो ऊपर नीचे नहीं कर सकेगा ना। अब अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्ड रखने के लिए उसको फिर डिलीट करना पड़ेगा। जब वो डिलीट करता है, एक बिट को करता है, तो ही हैज टू पे पेनल्टी ऑफ अमाउंट जो मैंने आपको बताया, K which is Boltzmann's constant, T which is the absolute temperature, logarithm of 2। छोटा सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, लेकिन दिस इज एनॉर्मस। तो जब वो इतनी इंफॉर्मेशन डिलीट करेगा तो फिर उसको वो एनर्जी देनी पड़ेगी। लिहाजा ये जो बात मैंने की थी ना कि इधर ठंडा हो गया कोल्ड, इधर हॉट हो गया, जैसे यहां पर मैंने इंजन चलाया, उस इंजन से मैंने काम हासिल किया, अब उसको वो काम इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो डिलीट कर सके। इज ए गुड, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। और अब हमें किसी हद तक समझ में आ रहा है कि वाई मैक्सवेल्स डीमन कैन नॉट वर्क, बट इट वाज अ वेरी ट्रिकी, वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हाँ Sir, I also think there is one more point, that on the hot side, the molecules are moving really fast, they'll collide against each other, but they'll lose some energy in the process as well. Oh, excellent point, excellent point. देखो, you're absolutely right कि इस फिजा, इस जो हवा इस कमरे में है, इसमें एटम्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, लेकिन बहुत कम टकराते हैं। दिस इज़ अ वेरी डाइल्यूट गैस। हाँ, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स लो तो पानी की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है ना बनिस्बत हवा के, तो उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में खूब ज़्यादा टकराते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, यूजुअली इट इज़ एन इलास्टिक कोलिजन, जिसके माने ये हुए कि हाँ, ये एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन इसमें एनर्जी एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं हुई। हो भी सकती है, इट हैपन्स, बट अगेन दैट हैपन्स वेरी वेरी रेयरली। हाँ, गुड, वेरी गुड। अच्छा, हाँ जी जी। वन क्वेश्चन रिगार्डिंग कि जो डिलीट करने के लिए एनर्जी है, एग्रीड प्रिंसिपल तो है कि कुछ ज़हर डिलीट करने में भी है, व्हाट इज़ द क्वांटम? क्या हम ये देख सकते हैं क्या हिसाब बराबर हो जाएगा, या हो सकता है कि जो डिलीट करने पे कम एनर्जी लगी है और जो जाने से लगी है, और एक्चुअली हमें मैक्सवेल की थ्योरी किसी हद तक सही हो, अगर टोटली सही ना भी हो तो? इज इट पॉसिबल? अच्छा, ओके, सो अब आप किसी हद की बात कर रहे हैं ना, क्वांटिफाई हो जाए तो चलिए अब मैं उसकी तरफ आता हूं। इसको देखते हुए अब आप यूं समझें कि the red molecules are the fast molecules and the blue molecules are the cold molecules, or all the blue molecules move with the same speed and all the red molecules move with the same speed, ऐसी सोच के लिहाज से। अच्छा, अब जब हम क्वांटम मैकेनिक्स
کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ایک بالکل نیا پہلو سامنے آتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹس آر ڈسکریٹ، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ ایک اسٹیٹ جس کو ہم سائے کا نام دیں گے وہ دو کا کمبینیشن ہے. مثال کے طور پر یہ ریڈ اینڈ مجھے اگر بلو چاک مل جائے. ہاں اوکے. سو quantum mechanics میں this is the state in which there's 2/3 chance that you will have a fast moving atom and 1/3 chance that you will have a slow moving atom. اب یہ اچھا we don't allow collisions in this. Collisions اگر شامل کرنے تو it becomes more complicated but it doesn't change anything very much. اب یہ کہ جب آپ کا ڈیمن اس اسٹیٹ پر کوئی آبزرویشن کرتا ہے تو کوانٹم میکینکس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جیسا ہی آپ کسی اسٹیٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس دیکھنے کے عمل میں آپ اس سسٹم کی حالت تبدیل کر دیتے ہیں. گویا کہ یہ آپ یا تو یہ پائیں گے یا یہ پائیں گے، البتہ ان کی مقداریں مختلف ہو سکتی ہیں. اچھا اب یہ پچھلے ہی سال کی بات ہے اور گزشتہ 10 سال کی بات ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو میک کوانٹم ڈیمنز جو ایٹمز کے ایکسائٹیڈ اسٹیٹس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو کوانٹم ڈیمن ہے اب چلیے یہ اس شکل کا نہیں ہے جو میکسویل نے ہمیں دیا تھا، لیکن بنیادی اصول اس کا یہی ہے، یعنی کہ ایک نظام کے اندر اس کی مداخلت ہوتی ہے، جیسا کہ یہ اس کے اندر مداخلت کرتا ہے، اس سسٹم کو بدل دیتا ہے. یہ جب اٹھاتا ہے یا بند کرتا ہے تو اس سے اس سسٹم کی پراپرٹیز بدل جاتی ہیں. تو یہاں جو کوانٹم نظام ہے اس میں بھی اب یہی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی یہ فزکس والے ایسے یہ فضول حرکتوں میں کیوں اپنی زندگی گنواتے ہیں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ اتنا بھی فضول نہیں ہے. ایک تو یہ کہ جو تھرموڈائنامکس کا پورا نظام ہے اس پر ہماری جو پوری دنیا ہے بنی ہوئی ہے، بنائی گئی ہے. لیکن جو آنے والی دنیا ہے نا وہ اس میں یہ کوانٹم ڈیمن جیسی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی، اور اس کی وجہ ہے کوانٹم کمپیوٹیشن. تو کوانٹم کمپیوٹرز میں یہ ہے کہ اچھا یہ جو میں نے آپ کو بتایا لینڈاور کا کہ جیسے ہی آپ ایک بٹ کو اریز کرتے ہیں، اریز کرنے کا کیا مطلب کہ آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے. آف کر دیتے ہیں، یا آن ہے یا آف ہے. نہیں اریز کا مطلب یہ کہ یو ہیو لاسٹ ہسٹری، ختم کر رہے ہیں. آپ اس کو دوبارہ سے ریکور نہیں کر سکتے. ٹھیک، لیکن بٹ پہ انفارمیشن بائٹ کی فارم میں یا بٹ آن ہے یا آف ہے. جی. تو مثال کے طور پر اگر یہ آپ کا رجسٹر ہے تو یہ 1 0 1 1 1 0 یہ آن ہے، آف آن 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 آف ایسے ہے نا. لیکن جب آپ اپنا ڈیلیٹ بٹن دباتے ہیں تو یہ سارا اڑ گیا. یہ پھر یا تو ایسے ہو گیا
3 6 या फिर इधर वंस आ गए, गोया कि इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। और इसको फिर आप उल्टा नहीं सकते, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप इरिवर्सिबल कहेंगे। तो जब इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस सूरत में एनर्जी लॉस लाजमी होती है। अच्छा, अगर एनर्जी लॉस हो तो फिर वही चीज़ है जो क्लासिकल कंप्यूटेशन में होती है। जो आने वाला ज़माना है क्वांटम कंप्यूटर्स का, उसमें सोच ये है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसका ज़ीरो लॉस है, और जो टोटल, और ज़ीरो लॉस होने के लिए उसको टोटली रिवर्सिबल होना होगा। तो आप समझ लीजिए कि मैक्सवेल का जो क्वांटम डीमन है वो दरअसल क्वांटम कंप्यूटर्स को पावर कर रहा है। सो दिस इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर। मैंने अपनी बात मैक्सवेल के डीमन के बारे में कर ली। अब मैं एक और शैतानी कुव्वत की तरफ जा रहा हूँ, और ये टाइम ट्रैवल से मुताल्लिक है। क्या हम माजी में जा सकते हैं कि नहीं? शायद किसी और वक्त पर बहुत ज़्यादा सैर हासिल बात हो सके कि वक्त क्या है, और वक्त की जो इस पर जो मुख्तलिफ जो गुज़िश्ता 1 सदी में काम हुआ है, बाद में मैं उसका अहाता शायद किसी दिन करूं इधर ही। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक शैतान की तरफ आता हूं। असल में 2 शैतान हैं। एक का नाम एक रशियन साइंटिस्ट है, उसका नाम है नोविकोव। एक को उसने जिन ए कहा है, दूसरे को जिन बी। आई डोंट नो व्हाई ही कॉल्ड देम जिन्स। रशियन जबान में तो शैतान को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन एनीवे। तो लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट टाइम ट्रैवल। सन 1916 में आइंस्टाइन ने जब इक्वेशन ऑफ जनरल रिलेटिविटी अपनी लिख दी, तो उससे एक वक्त का जो तस्वुर सामने आया वो पिछले तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। पहले ये था कि वक्त एक बहते दरिया की तरह है, एक ही समत बहता है, एक ही रफ्तार पे बहता है। लेकिन आइंस्टाइन ने ये साबित किया कि वक्त को स्लो भी किया जा सकता है, और आप मुस्तकबिल में पहुंच सकते हैं। माजी में आइंस्टाइन ने कहा कि बहुत मसले होंगे। मेरा ख्याल, आइंस्टाइन ने कहा कि मेरे ख्याल में माजी में जाना मुमकिन नहीं। और फिर उसने ये दलील दी कि फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक मशीन है जिसको टाइम मशीन कहते हैं। तो मैं अपने टाइम मशीन में बैठकर किसी पिछले ज़माने में चला जाता हूं, और जो मेरा दादा था उसको मैं मार देता हूं। अब दिस कॉल्ड द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो अगर माजी में मैं पहुंच सका और मैं अपने दादा को ख़त्म कर सका, तो मैं इधर कैसे हूँगा? लिहाजा उसने कहा कि ये देखो, ठीक है, मेरी इक्वेशन से ये चीज़ निकलती है कि वक्त रिलेटिव चीज़ है, कि वक्त का बहाव तेज़ भी हो सकता है, आहिस्ता भी हो सकता है। हाँ, जहाँ तक मुस्तकबिल में जाने की बात है, नो प्रॉब्लम। मुस्तकबिल में मैं बताता हूँ, बड़ा आसान तरीका ये है। इतना वक्त नहीं है मेरे पास, इतना आई एम यूजिंग वक्त टू मच। लेकिन ये कि फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक
रॉकेट शिप है, मैं उसमें सवार होता हूँ, आप इधर ही बैठे हैं, इसी ब्लैक होल में इस वक्त बैठे हैं, और मैं कुछ 100 साल तक सफ़र करता हूँ और वापस आता हूँ, और जब मैं वापस आता हूँ मैं देखता हूँ कि आप तो चल चुके, जा चुके, जो भी, मैं वैसे का वैसा जवान हूँ। और ये थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जिसको बहुत अच्छी तरह से परखा गया है, उसकी ये पेशन गोई है। और फिर ऐसा एक्चुअली हमने देखा भी है विथ एक्चुअल फिजिकल पार्टिकल्स, जैसा कि मेसॉन्स होते हैं, वो पार्टिकल जो डिके होते हैं, वी हैव सीन दिस। तो उम्र दराज करने के लिए, तो मेरी उम्र दराज हो गई, मैं गया वापस आया, आप चले गए। सो आई हैव कम इन टू योर फ्यूचर। अच्छा, अब ये पिछले चंद सालों से 1992, इट्स नॉट दैट रीसेंट, लेकिन इस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को बहुत लोगों ने रीविजिट किया है कि क्या ये हो सकता है कि कैन वी गेट अराउंड दिस समहाउ। तो इससे बहुत इससे तो बज़ाहिर कॉज और इफेक्ट में एक तोड़ आ जाता है, एक तकसीम आ जाती है। देखें, जिसको हम सबब और मुसब्बब कहते हैं, कि जो कुछ अभी हुआ है सो माजी के सबब हुआ है, उधर कुछ हुआ था कि यहाँ अभी कुछ हो रहा है। हम पैदा हुए पहले, जिस वजह से अभी हम यहाँ पर हैं। सो the cause has to come before, effect has to come later. या समझ लीजिए कि किसी ने कोई मैथमेटिकल थ्योरम डिस्कवर किया। एक मैं अब ठोस मिसाल आपको देता हूँ, पाइथागोरस। चलिए, पाइथागोरस डिस्कवर्स a theorem some 3000 years ago. उसके नाम से मंसूब हमारे पास ये एक थ्योरम पहुंचा है, c² = a² + b²। अच्छा जनाब, अब हमारे पास फर्ज कीजिए कि एक टाइम मशीन है। वो फिलहाल भूल जाएं कि हम टाइम मशीन कैसे बनाएंगे, हैं नुस्खे हैं उसके, ओके। मैं ये नहीं कि बनाई गई है, लेकिन कुछ ख्याल है हमारे दिमाग में कि ये कैसे बनाई जा सकती है, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं टाइम मशीन में सवार होकर उस ज़माने में पहुंचता हूँ 3000 साल पहले, और मैं पाइथागोरस को ये थ्योरम और उसका प्रूफ दिखाता हूँ। पाइथागोरस उसको नोट करता है और वो फिर लिख देता। अब बताइए, इज दैट थ्योरम बिकॉज ऑफ पाइथागोरस और नॉट? ही डजंट नो, ही इज ऑलरेडी सीन इट ना। ये उसकी ईजाद अब ना रही। चलिए थ्योरम को छोड़ दें, कोई गाना है, कोई म्यूजिक है, कोई नज़म है, कोई कुछ है, जो चीज़ पहले देखी गई है वो फिर ओरिजिनल तो नहीं रही। गोया के सबब और मुसब्बब, इल्लत और मालूल में ताल्लुक टूट गया। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, ये तो बहुत ही कुछ अजीब सी बात है। तो अब मैं इस पेपर की तरफ आता हूँ और बस मैं हल्का हल्का ही बताऊंगा इसके बारे में। 1916 में जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वज़ा की, तो उस ज़माने में आइंस्टाइन के साथ एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था जिसका नाम था गुडेल। और इसके ऊपर 2 नुक्ते लगते हैं मेरे ख्याल में, लगते हैं। अच्छा। गुडेल ने आइंस्टाइन की इक्वेशन को देखा और उसने उसका एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसमें क्लोज्ड, अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या, जिसमें क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स की गुंजाइश है, जिसके माने ये हैं कि आप किसी एक जगह से किसी एक वक्त पे अपना सफर शुरू कर सकते हैं और एक पूरा चक्कर, सदियों का चक्कर, दिनों का चक्कर, जो भी है, वो काट के दोबारा उसी नुक्ते पर पहुंच सकते हैं। सो द सेम पॉइंट इन स्पेस, द सेम पॉइंट इन टाइम, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए, ये जरूरी नहीं कि ये आई विल ड्रॉन इट एज अ टू मच ऑफ अ सर्कल, लेकिन ऐसे हो सकता, अ क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व। आइंस्टाइन ने ये देखा, उसने कहा कि वाह, actually he didn't throw it out of the window. आइंस्टाइन ब्लैक होल को तो नहीं मानता है, अब तो ब्लैक होल भी एक हकीकत है, सिर्फ ये नहीं, लेकिन वो जो आसमान में है, तो ब्लैक होल्स अब हर तरफ हमें ब्लैक होल्स दिखाई देने लगे। लेकिन दिस गोइंग बैक इनटू टाइम, आइंस्टाइन डिडंट थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो। आइंस्टाइन ने कहा कि देखो, ये तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, लेकिन तुमने इसमें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डाला है जिसकी वजह से ये चीज आ रही है। बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल थिंग। अच्छा, अब ये जो जिसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं, आज हमें पता है कि वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से शायद बहुत करीब है, लेकिन इट इज़ नॉन ज़ीरो, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन टाइम मशीन की पॉसिबिलिटीज़ और बन सकती हैं, लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है। एक तो ये हो सकता है कि अगर कोई ब्लैक होल हो, ब्लैक होल तो हर चीज़ खा जाता है ना, उसके अंदर जो कुछ आप डालें वो उसी में चला जाता है। तो ऐसे इस समझ लीजिए कि इधर आपने कोई चीज़ डाली तो ब्लैक होल अपनी अट्रैक्शन की वजह से उसे हाज़म कर देगा। और आइंस्टाइन की इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ये है कि ये जाके ब्लैक होल के बीच में, बिल्कुल उसके मरकज़ पे, वो हमेशा के लिए वहाँ जाकर ठहर जाएगा, एक नुक्ते के अंदर जम हो जाएगा। मगर एक और सूरत ये हो सकती है कि इस एक बहुत नैरो थ्रोट से गुजरते हुए ये दोबारा इस तरफ खुल जाए, इस तरह। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए वर्म होल। और ये वर्म होल भी एक टाइम मशीन के तौर पे ये भी एक टाइम मशीन बन सकता। सो इफ वी कैन अरेंज ब्लैक होल्स इन द राइट कन्फिगरेशन, देन यू कैन मेक अ टाइम मशीन। एक और तरीका हो सकता है, आपने शायद सुना हो अबाउट कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। ये मैं जो मुमकिनात हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
तो कायनात में ये ऐन मुमकिन है कि ऐसे धागा नुमा फीते हों जिनको कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहा जाता, जो घूम भी रहे हों. If there are spinning cosmic strings and you go around the cosmic string, तो ये एक फिजिसिस्ट है जिसका नाम है गॉट. तो दिस goes under the name of Gott's time machine. अच्छा, अब लोगों ने कहा कि ये ठीक है भाई, टाइम मशीन तो है, लेकिन बेसिक बात तो ये बनी ना कि आप अपने नाना को जाके दादा को कत्ल कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है. दिस बिकम्स नॉनसेंस. नोविकोव का मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है. अच्छा, नोविकोव इज़ बाय द वे, पता नहीं हयात है मर गया, लेकिन ही वाज वन ऑफ द बिग पीपल इन जनरल रिलेटिविटी. उसका ये कहना है कि देखो, ये उल्टी सीधी बातें तो हो सकती हैं कि जाके अपने नाना दादा को मार दो, लेकिन वो फिर सेल्फ कंसिस्टेंट थियरी नहीं बनती. और फिर उसने ये साबित किया कि दो किस्म की चीज़ें हो सकती हैं. एक को उसने जिन ए कहा, दूसरे को जिन बी. जिन ए का मैंने जिक्र किया कि हम माजी में चले जाते हैं और पाइथागोरस को उसका थ्योरम दिखाते हैं, तो पाइथागोरस उसको कॉपी करके आगे करता है, लिहाजा सबब मुसब्बब का ताल्लुक टूट गया. मगर वो क्यों? इंफॉर्मेशन की वजह से, कि हमने माजी में इंफॉर्मेशन पहुंचाई है. सो दैट इज जिन ए, जिन टाइप ए. दूसरी सूरत ये हो सकती है, अच्छा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना और इंसानों को पहुंचाना बहुत ही, आई मीन, वो टोटली फार आउट चीज है. बट व्हाट इफ यू कैन टॉक ऑफ अ सिंगल पार्टिकल? तो यहां पर ये देखें, ये माजी है. एक बिलियर्ड बॉल है, एक बिलियर्ड बॉल सीधे यूं आ रहा है और इधर उसका रास्ता, उसकी समत बदल जाती है और वो जाकर बिलियर्ड के खाने में गिरता, उसमें फंसता है. सो द बिलियर्ड बॉल हैज कम लाइक दिस एंड गॉन इन. ये माजी है. सो दिस इज, ये देखें, घड़ी इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है. अब हम ये करते हैं, और नोविकोव ने अब ये मैथमेटिकली साबित किया कि ये जो बिलियर्ड बॉल है, इसको वापस हम टाइम मशीन में भेजेंगे. बाकी, और ये टाइम मशीन उसको इस दौर में पहुंचाएगी, उस जगह पर पहुंचाएगी जहां वो अपनी माजी से उसका आमना सामना हुआ. उसने अपने ही को मारा, उसकी समत बदली और ये इधर पहुंचा. गोया कि यहां भी इल्लत और मालूल, सबब मुसब्बब का ताल्लुक कट गया. सो दिस कैन हैपन इन अ टाइम मशीन. तो नोविकोव का ये कहना है कि ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है वो आपको बहुत कुछ बताती है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं. अच्छा, जब हम फिज़िक्स में स्टूडेंट से क्वेश्चंस हल करवाते हैं तो वो बाज़ दफ़ा बड़े, या चलिए, जब सिंपल अरिथमेटिक के सवाल हल कराते हैं तो बाज़ दफ़ा बड़े स्टूपिड जवाब निकलते हैं ना, कि अगर 3 मज़दूर 6 दिन के लिए काम करते हैं और उनको इतनी ईंटें उठानी हैं तो कितने मज़दूर चाहिए होंगे उससे 3 गुना ज़्यादा ईंटें उठाने के लिए? उसका जवाब आता है 7.3 मज़दूर. नॉनसेंस. You don't have to believe every
solution of your equations? What does it mean to say 7.3 laborers when you know that they can only be integers? Novikov का ये कहना है कि take only those solutions which are self-consistent, यानी कि वो जिससे आपका हाल ना बदले माजी में जाने की वजह से. So the grandfather paradox is not a valid paradox. तो उसने दो जिनों में फ़र्क किया. एक वो जिन, उसको जिन ही कहता है, I don't know why. एक वो जिन जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और एक वो जिन जो मादा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पहुंचाता. एंड सो देखें ये सारी बहुत मज़े की बातें हैं. हो सकता है ये हकीकत से खाली हो, लेकिन जिस चीज़ पर ना आप सोच को आज़ाद करते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो कभी ना कभी उससे कुछ निकलता है. वेरी फार आउट स्टफ. कौन सोच सकता था कि क्वांटम मैकेनिक्स से क्या निकलेगा? कौन सोच सकता था कि ये जो 200 साल पहले कोशिशें हुई थी थर्मोडायनामिक्स की, वो ऐसी दुनिया हमें बना कर देगा. सो आई एम गोइंग टू एंड ओवर हियर. ओके. सर ये जो मैक्सवेल्स डीमन के बारे में, कि अगर एक की बजाय दो डीमन हों, सपोज़ एक राइट साइड पे है और एक लेफ़्ट पे है. इमेजिन कोई सब्सटेंस है जो एक जो है वो हॉट है और एक कोल्ड है. इनहेरेंटली वो हॉट है और इनहेरेंटली कोल्ड है, या फिर वो ग्रेजुअली दे लूज़ देयर एनर्जी. और वो ऑटोमेटिकली जो हॉट है वो हॉट एटम्स को उधर इकट्ठा कर दे और कोल्ड को उधर इकट्ठा कर दे. एंड व्हेन वी स्विच देम ऑफ तो नेचुरल फ्लो एनर्जी का शुरू हो जाए. तो ऐसा हो सकता है. बट व्हाई डू यू नीड टू डीमंस? एक ने ये काम कर दिया ना. वी हैव कम टू नो कि एक डीमन तो प्रैक्टिकल नहीं है और ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट किया जा सकता. हाँ, लेकिन उसकी वजह कि उस डीमन को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन मिटाने के लिए, एरेज करने के लिए. तो अब दो डीमंस होंगे, उनको डबल एनर्जी खर्च करनी होगी. वाई शुड? देखें ये तो ऐसे है ना कि आपने दो बंदे रखे जहाँ एक की ज़रूरत थी. आई एम इमेजिनिंग कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो इनहेरेंटली हॉट और कोल्ड हो और ये प्रोसेस खुद ब खुद होता जाए. What do you mean by something is inherently hot or cold? आप तासीर की बात तो नहीं कर रहे? No, आई एम सेइंग कि जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस है और फॉर एग्जांपल कि उसकी आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे केमिस्ट है या नहीं है, तो कि वो ग्रेजुअली फॉर एग्जांपल कि वो ऐसा इंजन बन जाए जिसमें वो 10 इयर्स तक वो ग्रेजुअल अपनी एनर्जी लूज़ करे और 10 ईयर तक वो काम करता रहे और वो सिस्टम जो है वर्क करता रहे थ्रू जो है वो हॉट और कोल्ड जो है वो फ्लो क्रिएट करता रहे. Not clear to me. देखें, nothing is inherently hot or cold. हीट किस चीज को कहते हैं हम? रैंडम मोशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स. वो कंस्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. जो उनकी बेतरतीब हरकत है उसे हम गर्मी कहते हैं. इट इज इम्पॉसिबल सिंपली आंसर. No, you will have to explain more. आई एम इमेजिनिंग कि जैसे जो है वो कुछ जैसे वो होते हैं हाफ लाइफ के they have a certain property and then they lose that property in a certain period of time. ठीक है. तो मतलब आर देयर एनी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो या प्रॉब्ली फ्यूचर में डिस्कवर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक मतलब इवेंचुअली तो एक सिस्टम की बात है ना कि जिसमें एनर्जी फ्लो करे. तो वो कंडीशंस प्रोड्यूस करने के लिए मतलब वो इमेजिनरी डीमन जो है वो कंडीशन प्रोड्यूस करे
تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا سبسٹنس ہو جو یہ کنڈیشن جس کے تھرو پروڈیوس کی جا سکیں وداؤٹ ایکسٹرا انرجی, جیسے فیول جیسی جو ہے وہ ایکسٹرا ان پٹ کے بغیر. اوکے, ناؤ آئی انڈرسٹینڈ. تو جیسا کہ کوئی ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ہے, سمتھنگ لائک دیٹ. آپ مثال کے طور پر آئی تھنک وتھ پلوٹونیم, فاسٹ پلوٹونیم کا آئسوٹوپ مجھے یاد نہیں ہے, شاید 233 یا 235, جس کے ریئیکٹرز لوگ بنا چکے ہیں, اسمال ریئیکٹرز فار یوز ان اسپیس. تو پلوٹونیم کیونکہ ایک ایسا نیوکلیس ہے جو تقسیم ہو, جو ٹوٹتا ہے, ٹوٹنے کے عمل میں اس میں سے انرجی نکلتی ہے, اس انرجی سے پھر آپ اس راکٹ شپ کو چلا بھی سکتے ہیں. یس, سو دیٹ از سرٹنلی پاسبل. جسٹ لاسٹ, so why can't we use the same cars اور ایروپلینز وغیرہ میں کیوں نہیں ابھی وہ ہو؟ بیکاز اٹ از ہائیلی ڈینجرس. آپ کو پتہ ہے پلوٹونیم اس قدر ایک خطرناک چیز ہے کہ اگر ایک نمک کے دانے کو آپ 1000 حصوں میں توڑیں, وہ جتنا سائز ہے پلوٹونیم کا, اگر پھیپھڑوں کے اندر گھس جائے, یو آر گون. آپ منٹوں کے اندر ختم ہو جائیں گے. تو اسٹے اوے فرام پلوٹونیم. My question cum discussion relates to the fact that you talked about spinning cosmic strings. So there are spinning black holes also, which have ogospheres around them. And in the ogosphere, scientists presume that the arrow of time is reversed, right? Okay. And also there is one more thing, that black holes are made out of wormholes. So if black hole is, for example, consuming one matter, and then it is spewing out the matter from it's related to the fact of Hawking radiation. So it's radiating out matter also. So black holes are, you can say, scientists have also come to the conclusion that they are made out of wormholes also. No. The other things you have said are very interesting and right, but black holes are not made out of wormholes. دیکھو ایسے ہے کہ Einstein, everything goes back to Einstein's equations, which are very simple. You know, I could write it. Is just Einstein's equation is just this: R is equal to T. This is the curvature of space-time. This side is the presence of matter or energy. It's more complicated than that, but سادہ لفظوں میں یہ. اچھا, اب اس کے سولوشنز میں بلیک ہولز بھی ہیں, ورم ہولز بھی ہیں, اسپننگ بلیک ہولز بھی ہیں. اسپننگ بلیک ہولز it's not easy, it's quite actually difficult to solve Einstein's equation for a spinning black hole. لیکن جب آپ وہ اسپننگ بلیک ہول کے لیے سالو کرتے ہیں تو you find that space time is being dragged along by the black hole. اور اس کو, as you said, this is called the ergosphere. The reversal of time does not happen over there. No, that does not happen. Time then travels at, time passes at a different, slower rate. Hawking radiation, yes, all black holes, they radiate this radiation, which means photons, but also every kind of particle comes out of it, and that is how black holes do lose energy, but very, very little. So, sir, just one more thing, that as you get closer to the singularity, time doesn't reverse over there. It goes to stop. Do you agree with that? Well, whose time is the question? The person who is going inside the black hole. Because observer takes the same day. For the person who is going inside the black hole, it makes no difference. اچھا دیکھیے, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہاں پر بلیک ہول کا مرکز ہے, یہ اس کا ریڈیس ہے,
अगर हम किस बहुत दूर खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि कोई शख्स इसके अंदर गिर रहा है, इसके इधर तक जो इवेंट होराइजन है उस वक्त तक हम उसको अंदर जाते हुए देख सकेंगे, उसके बाद जब वो उसके पार चला जाएगा हम नहीं देख सकेंगे। लेकिन हम उसको इधर तक जाते हुए नहीं देख सकते हैं। अलबत्ता वो शख्स जो गिर रहा है इसके अंदर, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। बस थोड़े से अगर वो उसका साइज छोटा हो, अगर वो एटम के साइज का हो तो उसको नहीं पता चलेगा। तो डीमन को हम इस पे बिठा सकते हैं। डीमन को नहीं पता चलेगा कि वो ब्लैक होल में गिर रहा है जब तक कि वो बिल्कुल इसके नज़दीक ना पहुंचे, सिंगुलैरिटी के नज़दीक ना पहुंचे। उस वक्त तो फिर डीमन भी उड़ जाएगा, शैतान मिट जाएगा। Like in the far future, can you make a time machine using a black hole? Yes, yes. You will actually need 2 black holes. There will be a funnel between the 2 black holes. So when you jump into one black hole, you will be pulled in, but you won't end in the singularities. There's one possibility, but not the one considered over here. You will come out of the other end. तो देखो, इसीलिए लोगों ने पूछा था उस वक्त मुझसे कि इसका ब्लैक होल नाम क्यों रखा गया। इसलिए कि दूसरे सिरे से आप निकल के एक नई दुनिया में पहुंच सकेंगे। अच्छा, हाँ। Sir, actually my question is related to this. Like if you use 2 black holes and you get sucked in through one and through the funnel you go, in the second one, will it be the second black hole should be the opposite of a black hole, as it is repelling you outwards, not sucking you in? Very good, very good. In fact, it is called a white hole. And actually, he was the discoverer of the white hole. And then he also discovered that the white hole doesn't work because there will be such quantum effects. देखो ना, ऐसे है कि you want the funnel to stay open as something travels, as you travel through it. तुम्हें दूसरी तरफ पहुंचना है ना, that's why you jumped in the black hole. लेकिन अब नोविकोव और कोई और है, forget the name, उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप उसमें एक फोटोन भी फेंके ना, एक पार्टिकल का इतना सा जर्रा, तो होगा ये कि उधर क्वांटम जो फील्ड है वो ऐसे उछलना शुरू होगी कि वो गर्दन ही उसकी खत्म हो जाएगी। Told us about Landauer, who said that, this problem is actually a problem of information storage, that, you need to know the positions and momenta of all these particles at all times. But what if this channel is just 1 atom thick, so that the demon just needs to look at that 1 atom that is coming at the gate and just record the position or momentum of that 1 atom and then let it through or not? Okay, तो इसको इतना कम करना है कि सिर्फ एक ही एटम इसमें से गुजर सके। So my answer to that would be, how much information is there in a wave function? There is an infinite amount of information in a wave function. Because you're a physicist, you know this. ऐसे है कि if this is your position eigenstate, then the full state is this thing. You need to be able to integrate from here up till here, जो भी इधर है, whatever the limits are. Huh? So that is, तो इसमें you need to know psi at every point. And because this is a continuum, therefore, classically you need an infinite amount of information over there. अच्छा, चलो उसको छोड़ दो. Suppose we do this quantum mechanically. So then you would need to know how many n's the excited quantum numbers to go up till. वो आपने कर लिया, लेकिन वो इस वक्त, अगले वक्त पे, अगले. Eventually you will need to delete information. When you delete,
you lose energy. ڈاکٹر صاحب یہ جو سسٹم ہے یہ تو نیچرلی بھی اکر نہیں کرتا جس طرح آسموسس جب ہوتا ہے یوزلی وداؤٹ اس پرووائڈنگ اینی ہیٹ اور اینی تھنگ مالیکولس خود ہی سپریٹ ہو جاتے ہیں یا پانی اور تیل بھی وداؤٹ اس گیونگ دیم اینی تھنگ دس پروسیس ڈز اکر نیچرلی از ویل. تو اس میں اتنا کیا مسئلہ ہے کہ یہ گیسز خود ہی کیوں نہیں وداؤٹ دا نیڈ آف اے ڈیمن؟ دیکھیں جو ڈیفیوژن اور آسموسس ہیں وہ تو ایٹمس کی کائنیٹک انرجی کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ اگر اسے ٹھنڈا کر لیں تو آسموسس ختم ہو جائے گا, ڈیفیوژن ختم ہو جائے گا. یہ رینڈم کائنیٹک انرجی کے سبب ہی سب کچھ ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم نے سب کچھ الٹا دیا. ہم نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ ٹھنڈا گرم ہر ایک جو ہر ایٹم کے لیے یہ طرف اور یہ تمام ڈائریکشنز ایک برابر ہیں. ہم نے ایک ادھر شیطان بٹھایا جس نے اس چیز کو ختم کر دیا. سو ون ڈائریکشن از پریفرڈ اوور دی ادر. آسموسس بھی اس صورت میں ختم ہو جائے گی. رینڈم موومنٹ کو ختم کر دیے. ہاں ہاں ہاں. سو not all randomness is finished, but this important randomness is, yes. سر اس میں جیسے انہوں نے ابھی کہا ہے کہ آسموسس از دا ٹرانسفر آف ماس ٹرانسفر ود رسپیکٹ ٹو ہائر کنسنٹریشن گریڈینٹ ٹو اے لوور کنسنٹریشن گریڈینٹ. وہ تو نیچرلی ہے لیکن یہ اس کا الٹا ہو رہا ہے. یہ اس کا الٹا ہو رہا ہے. کنسنٹریشن گریڈینٹ جیسے کہ آپ نے ہیٹ ٹرانسفر کہا, ہیٹ ٹرانسفر ٹیمپریچر گریڈینٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہائر ٹیمپریچر سے لوور ٹیمپریچر کی طرف جا رہا ہے. اور مومنٹم ٹرانسفر ہوتا ہے فرام ہائر ویلوسٹی ٹو لوور ویلوسٹی. یہ تینوں گریڈینٹس ایک ہی طرح کام کرتے ہیں, کنسنٹریشن گریڈینٹ, مومنٹم گریڈینٹ اور ٹیمپریچر گریڈینٹ. تو وہ تو نیچرلی ہو رہا ہے. یہ تو اس کا ان نیچرل کام ہے. یہ والا یہ کام اس کا ان نیچرل. جی بالکل بالکل. وہ ریورس آسموسس ہے. وہ ریورس جیسے آر او پلانٹ میں ہوتا ہے ریورس آسموسس. ہم ایک ممبرین بیچ میں انسٹال کرتے ہیں اور پریشر اپلائی کرتے ہیں دوسری طرف سے, یعنی انرجی اپلائی کر دی, انرجی اپلائی کرتے ہیں. وہ ممبرین سلیکٹیولی اس پارٹیکل کو پاس کرنے دیتی ہے جو کہ ہمیں دوسری طرف چاہیے, وہ والا. تو وہ آسموسس کا ریورس ہوتا ہے لیکن اس میں انرجی استعمال ہوتی ہے, اس میں ویسے نہیں ہو سکتا. جی بالکل تھینک یو. بالکل ٹھیک. یہاں پر تو یہ ہے کہ ہم ایک سائڈ کو بالکل خالی کر سکتے ہیں, دوسرا سائڈ بھر جائے گا. جی Sir, one last question. Sir, there are two possibilities in which this devil, in which we can demon can actually create infinite energy. Like if we have infinite storage for the data or bits, we have infinite of the storage, then we will not have to delete the information, thus causing it to do it. Or the second one is that it doesn't store information. Sir, in which one do you agree? Okay, so there is always a limit on how much information you can store, because after a certain time your hard disk gets full, you have to start deleting. Okay, you say I'll go to blue area and I'll buy a bigger hard disk. Okay, after a while you buy all the hard disks in the blue area, then you buy all the hard disks in China and America. You will still not have enough storage. It will still be finite, large but finite. The best storage, absolutely the best storage, is a black hole. The surface of a black hole has got energy storage. It's called the black hole entropy, which is the area of the black hole divided by Planck's constant. Planck's constant is very, very small. So it's a huge, vast amount of information, but still that is finite. My point is that in order to track all those atoms, you still
You can never have enough storage. So you'll have to give back the energy. Thank you, sir. Okay, so I think we are done. Thank you. Very much.